Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry for delay in starting the program, and I have great pleasure in introducing Shri Naveen Saxena. Shri Naveen Saxena is currently posted as Assistant General Manager in Lucknow local office of SEBI, looking after the activities related to financial education across the state of Uttar Pradesh, and is handling complaints pertaining to the securities market intermediaries. He has a work experience of more than 16 years in various capacities across different departments of SEBI. His assignments include diverse areas of investigation, department, market intermediaries, regulation and supervision department, parliament question cell and right to information cell. So I'm very happy to welcome him on behalf of AWOKE India and Lucknow Management Association, and we look forward to hear from him about the future of financial management and COVID-19. So over to you, sir. A very warm welcome to all the participants present today, and thank you, sir. Thank you, Mathur sir, for your kind words of introduction. And I would like to thank from the bottom of my heart, Shri Pravin Dwivedi ji of AWOKE India Foundation, who has always with us, with SEBI, and very known face. And today's webinar also is been organized by sir. Today's webinar, the topic is regarding financial management. So I will be sharing my PPT in this regard. Is my PPT visible to everyone? Yes, yes. Thank you. So, talking about financial management, I will give more emphasis on the securities market, being representing Security and Exchange Board of India, and today being a very, you can say the climate has become very cold also. So, so this is I think a time I think which is COVID period. It's still going on. COVID time is still going on, so it is a pandemic time, and I think hopefully after this winters gets over, so people will also be like able to get over this COVID pandemic. With those who I think I will just want to start. First of all, I will like to talk about as we mentioned, Securities and Exchange Board of India. The first word that is coming in front of us is securities. So we can understand what is the word meaning securities. Securities as a word, if you see, it means any kind of ownership in particular publicly traded corporation or any stock. So this is kind of कोई आपका वहाँ पे rightful आप उसके owner हो जाते हैं. आप जितना भी शेयर लेते हैं या सिक्योरिटी लेते हैं उतना ही आपका एक राइट हो जाता है या आप उसके ओनर हो जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपका एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है. सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी यू गेट अ रिलेशनशिप. दैट रिलेशनशिप इज ऑफ अ लेंडर एंड अ बोरोवर. सो द पर्सन हु इज इशूइंग द सिक्योरिटी इज अ लेंडर and the person who is buying those security is a creditor or he is giving the money. So that kind of relationship is also denoted by security. So this is the definition of security. Security definition has also been given very clearly under SCRA, that is Securities Contract Regulation Act 1956. So this is defined under section 2H of SCRA, where security comprises of shares, scrips, stocks, bonds, debentures. Shares, scrips and stocks are part of equity. Bonds, debenture is a part of the debt. So in debt, as you very well know, that debt comprises of fixed income, that is interest on the principal and the principal. While security or
in terms of equity will be giving you return in terms of the increase in the price, in terms of the increase in the capital. So other than that, there will be other part that is return in terms of dividend you will get. So that kind of different connotations are there for securities. Now derivatives are also part of securities. Derivatives derive their value from any kind of variable. Variable can be the price of shares. Variable can be the price of anything which is not constant. The value of that is moving. So we are having derivatives on weather also, because weather also is changing. Similarly, we are having derivatives which is coming under the purview of securities, which is derivatives on shares as well as derivatives on commodities. So these are the derivatives that comes under the purview of SEBI. Other than that, there is collective investment schemes. Collective investment schemes is defined under one regulation, that is CIS regulation 1999. What is a collective investment scheme? Then there is mutual fund. As you very well know, there is a very specific mutual fund regulation where mutual fund is also defined, and these mutual funds are registered with SEBI. They are also part of securities. Then there is government securities, securities which are issued by the government body or government related entities. Then there is some right or interest in securities. So these rights or interest in securities, again, can all these, if you see, are tradable. This is the first characteristic of a security. You can trade it. You can buy and sell very freely. So that kind of freedom is there. This is change of ownership can take place, and also it is fungible. So you can have it the number form. So you can have it in demat form. So that kind of characteristic is there. So these are this is the word security. This is the meaning of security. Now, why? What is a securities market? Why we require the securities market? So we can understand securities, when we are talking about securities, any place, any market where the securities are bought and sold. They can be bought and sold. The ownership can change. This is a market. So as any market can be there, securities market is a market where securities can be bought and sold, or securities can change the ownership. Why the securities market is required? The requirement of securities market is for the allocation of security savings to investments. The investment saving anything, what is a saving? I will just, in one word, I can say whatever is remaining out of the consumption from the income, that is a part of your saving. Now saving, if it is given into or it is flowing into the investments, particular to the financial investments and financial products, then it is rooted in the economy. And economy, if you see the money which is going in the economy through the investments or investment products, it is used for the betterment of the economy by taking up of infrastructure projects like roads, canals, irrigation projects, etc., etc. And by having these kind of infrastructure projects and development projects, then the economy, the money circulation increases, and the more the increase in the money supply, so the more efficient the economy is. The GDP growth rate, which is an indicator of an economic growth, that shows how well economy is growing. At the moment, if I say GDP growth has gone down, it is around 4 to 5%. Earlier, it was around 8%, which was like around 8% the economy was growing. It has come down to nearly 4% or less than 4%. So this is the main purpose of securities market. Now, any investment, if you are making other than the financial products, may not go in directly into the economy. Like if you're investing into real estate or gold, that investment may not go in the economic development. So if I'm talking about market, a security market can also be defined in two terms. One division is primary market, the new issue market, and the second division is secondary market. The new issue market, when any company which is not listed, I will define the term listed also. If first time it is coming in the market, that means it is going to the public, general public, to take the money, to raise the money, then it will come with an IPO, initial public offer. So this is a new issue market. Well, the company is bringing its securities and going, let it is the equity issue or it is a debt issue. First times it is going in the market and asking the people to take those securities and give the money to the companies. Then the company has to become listed. So this is a market. First time the company is coming. Other than that, there are several other issues like FPOs, follow-on public offer. Other than that, other modes are there, right issues are there. Several other manner the company can come in the market and raise the money. When these securities are taken up by the investors,
the market where these securities are traded, that is bought and sold, that is called as the secondary market. Now, if I'm talking about the securities market, it can be divided into three major parts. First, as I mentioned, issuers. Issuers are the listed companies which are listed on the stock exchanges. Any company which is coming in the securities market has to be listed company. So the stock exchanges which are there presently, they're majorly NSE, National Stock Exchange, and Bombay Stock Exchange. There is another stock exchange, that is MSCI, that is Metropolitan Stock Exchange of India. So these are stock exchanges where these companies have to list. While listing, these companies have to follow some agreement, some rules, regulations by undertaking any agreement which is called as listing agreement. So after that, there are some guidelines which the company has to always follow, that is called as corporate governance norms. So then the second part is intermediaries. Intermediaries are several type of intermediaries, but majorly there are two intermediaries which are required for coming in the securities market or for an investor to know. First is a broker, second is a depository participants. There are several intermediaries which are there which are facilitating the securities market operations. Then there is third part, that is investors. Investors can be small investors, medium investors, or big investors also. Small or retail investor is an investor who is investing up to rupees 2 lakh of rupees. So, or he's subscribing in securities up to rupees 2 lakh. Other than that, they can be investors who are not institutions, but they're investing more than 2 lakhs. They are non-institutional investors, HNI investors. Then there are institutions also. They can be banks, insurance companies. They can be foreign institutional investors, as well as they can be sovereign funds. They can be they can be countries also which are investing into other countries. So they are very big investors also. So they are forming the constituents in the securities market. So these are the several participants in the security market. First are the MIIs, that is stock exchanges, that is market infrastructure institutions comprising of stock exchanges and depository. The depositories are two depositories. First is NSDL, that is securities depositories, and that is CDSL, that is central depositories. So there are two depositories which are there in the securities market. Then, as I mentioned, the brokers are agents of the stock exchanges. Depositories participants are the agents of the depositories. So there are two intermediaries which are required for any investor to come in the securities market. There are other intermediaries which are mentioned, like merchant bankers, registrar and transfer agents, banker to an issue, mutual funds, credit rating agencies, research analysts, investment advisors, foreign portfolio investors. Research analysts and investment advisors are recently introduced. So they are also, they can be, one intermediary can be having several type of registrations. Same broker can be also having, he will registered also investment advisors as well as research analysts. So these are several type of intermediaries which are operating in the securities market for facilitating the work in the securities market. Now, just coming academically, how this stock market has evolved. So we can understand it is not a very recently started. This has got a very old history. So if we talk about it, it is originated by the Dutch, that is Netherlands, where some joint stock companies were there, and they wanted to become a viable business model. So they were new and struggling businesses. So because of that, they have come up with the idea of joint stock companies. So it started in the Netherlands. There in 1602, the Dutch East India Company issued the first paper shares. And thereafter, this practice came to England, where industrial revolution was beginning, and this idea to generate startup capital started. Thereafter, in London only, the London coffee house, some stock traders went and they met over there, and then they called that coffee house as a marketplace. This was in the year 1773. The same coffee house, that marketplace, was got its name as stock exchange. So first stock exchange was called as London Stock Exchange, first time in 1773. Now this same idea flowed to American colonies with an exchange which was started in Philadelphia in 1790. So thereafter it came to then the Wall Street, as you very well know, finance students will be knowing about it. It started in May 1792.
with 25 brokers together coming and signing Buttonwood Agreement. This Buttonwood Agreement was signed under a tree which was called as Buttonwood. That's why the name of the agreement is Buttonwood Agreement. On March 18, 1817, the group itself named itself as New York Stock Exchange, which name is still existing, NYSE. Now, in India, this history of stock market is dating back to 1875, where around 318 members, they formed a group which was named as Native Share Stock Broker Association. This same association was later called as Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange was the first stock exchange, which was the oldest stock exchange in Asia, first stock exchange in Asia. It's very old. And then later, National Stock Exchange was also incorporated in the year 1992. Now, when we're talking about any regulator, this picture, if you see the picture on your desk, then you can see some person is standing and he's raising one card, that is red card, and some players are surrounding him. One player has got down. So this is a picture of a match. That is a match of football match. So this referee who is taking some action by showing this red card because of some rules and regulations which were to be followed, that has not been followed. So he is asking some action to be taken because of not following some rules or regulation. So what is the role of this person, that is referee? He wants to or let that match to be happening in a proper, organized and disciplined manner with all rules and regulations to be followed. So that is the role of a regulator. Just like a referee, he has to also see whether all the rules and regulations are being followed and whether the market or any play, it is taking place in a very organized manner, in a disciplined manner. Now, this is the rule, and this is the need for a regulator. Otherwise, if being not a regulator, without a regulator, there will be a lot of confusion, as you see in this picture, and there will be disorder. So with a regulator in any of the field, there will be some discipline, some rules and regulations to be followed, and that is the desirable method of bringing efficiency. So there are some regulators in financial sector, in securities market. SEBI is there, Securities and Exchange Board of India. Then oldest regulator in banking sector, that is Reserve Bank of India. It came in 1935. Then insurance sector, then it is regulated by IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. It came in 1999. Then pension sector is regulated by PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority, came in 2003. All these regulators, along with other regulators also, are regulating the financial sector, but these are the major regulators, 4 regulators who are regulating the financial market. Now, coming to Securities and Exchange Board of India, the Securities and Exchange Board of India was formed as an administrative body under Ministry of Finance in the year 1988. SEBI was formed as an independent regulator for securities market through an act of parliament on 4th of April 1992. SEBI regulates, or SEBI, under SEBI there are some acts which are administered by SEBI. First is SEBI Act 1992, then another is Depositories Act 1996, and then Securities Contract Regulation Act 1956, and some provisions of Companies Act 2013 are regulated or come under the purview of SEBI. Now, if I'm talking about SEBI, the main purpose of SEBI, it is formed with 3 mandates. The first mandate, that is a prime mandate, is of investor protection. SEBI has to see that investors are protected. For looking into it, how the investor should be protected. SEBI sees that investors should know how to invest in the securities market. Secondly, he should be 100% sure that market is free from any kind of foul or any kind of fraud. So it has to make the market secure. If a person is coming in the market, he should know how to invest in the market, and he should be aware of all the nuances required, all the things that he should be aware of while coming in the securities market. He should be an aware investor while he is coming in the securities market. So all these things SEBI has to do to make the investor protected, and in case if he's having some kind of complaint, any wrong happens to the investor, then there should be a laid down mechanism to see that the investors' grievances are dealt with in a prompt and efficient manner. So these all things SEBI takes care to take care of this mandate of investor protection. And secondly,
Second mandate that SEBI has got is of regulation of securities market. As I was mentioning, there are some acts which are coming under the purview of SEBI. So under these acts, there are regulations which are SEBI can itself form, and it can make the changes in these regulations. So SEBI has got those powers of regulating the securities market by making the changes according to whatever is the requirement of the securities market. Then there is a third mandate of development of the securities market. SEBI from the very starting, that is 1992, has brought down a lot of changes. It has brought down new products, development of new products are there. Derivative products have been brought. The whole trading which is taking place in the securities market is only taking place in demat form. Only dematerialized securities can only be traded. So all these changes have been brought, like derivatives also, index derivatives, currency derivatives. Now latest it is some more changes in terms of like changes in terms of exchanges also. Exchanges have also been brought to only two. Earlier there were so many regional stock exchanges. All those changes which SEBI has brought in the securities market is for the sake of development of the securities market, to make the market more efficient. The main purpose of the market is to derive a proper efficient price of the securities which are traded in the securities market. By having these regulations, if SEBI sees that the market is not functioning in a proper manner, it can make the regulations more tighter. And if it wants to develop the market more, it can make the regulation little flexible, or it can make the regulation little easier or little less tighter. So by these two mandates, all the three mandates together, and these two mandates are totally actually you can say anti to each other. By following all the three mandates, SEBI, what it does is it is fulfilling the mandate of har investor ki taakat. Now, if I'm talking about SEBI powers, then SEBI powers are threefold powers. Three powers which are separate to each other. First power is the power, legislative power, as I mentioned, power to make its own regulations and to make the changes in the regulations also. Any changes which are required, SEBI can make it by itself. Then there is executive function. Executive function is the power to see that these rules and regulations are being followed by the persons who are coming in the securities market. If they're not following any rules and regulations, SEBI has the power to see action are taken against these entities which are not following the rules and regulations in the securities market. Then the third power is judicial power. SEBI can act itself as a quasi-judicial court, and it can pass judgments, passes judgments on any parties which are coming for any kind of conflict which is there. So these powers are there, which are separate powers, which is also very clearly mentioned by Supreme Court in one of its order, where it has mentioned SEBI has all the three powers, separate powers, in one of its judgments. Now, as I was talking about securities market, in this picture you can see that this was the old system. In the left hand side, this was an open outcry system, and where you can see this was a marketplace, or you can say stock exchange, a very rustic old type of stock exchange, where people used to shout, like if you see the next picture below it, the people used to shout out the prices. The person who wanted to buy, they used to buy, you want to shout the prices at which they wanted to buy. The person who wanted to sell the securities, they used to shout out the prices that they wanted to sell the securities. But this was the mechanism to get to the price. This was the mechanism to derive the prices in such kind of scenario, in such kind of places, which was called as stock exchanges. Later it developed to today's stock exchange, which is totally automated, totally electronic, and any place you can want to trade, you can just have your mobile, you can just do your online trading. So everything is totally online. So the changes have taken place so rapidly and so much. So today, if you see on the right hand side, this was a share, which was a physical share, where trading used to take place in such kind of paper form of securities. So all those transfers and the buying and selling used to take place in physical shares. Now this has changed to that next portion. If you see on the downside, these are become fungible or demat shares. So the trading is taking place only in the dematerialized shares. So the totally trading is online and in dematerialized shares. So this is the evolution of securities market, which is taking place from the old system to the new system. Now SEBI, if I say,
what is the role? As I mentioned, the first mandate of investor protection. The SEBI is also taking investor education activities to enhance, to fulfill the mandate of investor protection. SEBI has different methods to undertake the investor education activities. The first method is through resource persons. Resource persons, if I say in at each of the states across India, we are having resource person in most of the districts, and in Uttar Pradesh there are 75 districts. We are having around 230 resource persons who are working, and they are working in each of these districts, going to the nook and corner of the cities and towns, villages, to reach to the any kind last person which is possible, to make them aware about the investor education. That is the main purpose of resource persons which we are having. And then the second type is visit to SEBI programs. SEBI is conducting visit to SEBI programs by going to the schools premises, colleges premises, as well as the inviting schools, colleges and institutes to SEBI offices also, to conducting this visit to SEBI program. Then SEBI is also conducting regional seminars, where SEBI is in coordination with some MIIs, stock exchanges, depositories, and commodity derivative exchanges, etc. We are conducting these regional seminars, and then we are also conducting our investment awareness programs to the investor associations. Just like we are conducting this today's webinar through the Investor Association, AWOKE India Foundation. So through them also we are going to the Tier 2 and Tier 3 cities, where we are conducting this investor awareness programs. Lastly, we are having our website, investor website. If anyone wants to visit and see what is the type of programs that SEBI is running, and if he wants to learn about some investor education related material, he can always get those materials while visiting the SEBI's website, which is mentioned here, and he can see what programs, activities SEBI is undertaking for the investor education mandate. Now coming to the second portion of my talk, I will be talking about financial planning. If you see this PPT, this is showing human life cycle. So if you see, it is dividing it, this human life cycle is divided into phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 is the phase where person is learning only. Mostly he is learning only and he is not earning. So where he has been provided something from the like income or money is being provided by someone else, like mother, father or guardian. So that is the way that he is earning. So at that time, the main motto is to learn more, and there is not the motto of earning more. So that is the stage number 1, phase 1. And then the phase 2, where the objectives comes, like there are different objectives in this phase. When you start earning, along with the earning, you have a lot of other objectives, like marriage can be an objective, children education, children's marriage, housing, all these different objectives or goals can be there in the phase 2. But if you are aware about these goals in phase 1 only, then also it is possible that you can plan your investment or saving according to your seeing your goals which are there. It is not like you're coming to phase 2 only, then you can have your goals. You can have your goals, seen goals, and you can see that your goals are fulfilled. Start towards your goals in the phase 1 also. So basically, as soon as you start to put your money in a better, you can say better manner to reach to your goals. So that is the best thing, because at an early age, if you start, that you can easily reach to your whatever goals you may have. The last goal that is there, that is your retirement. It is mostly in all the it will come in mostly all the earning persons life. It will come. It is a reality. So it is probably around 60 years the person is going to retire. At that point of time, like he is not going to earn, so he cannot at that point of time start some kind of investment to take care of that objective. He has to make his plan beforehand. So if he is starting beforehand, is knowing that he is going to be retiring after some time when he is not going to earn, so that planning has to be done beforehand only. So that phase where he has to maintain that quality of life as he was maintaining when he was earning in phase 2. So that is also the goal he has to look into. Now, when I'm talking about savings and investment, as I mentioned, saving and investment, saving is, people will say saving and investment are one and the same thing, but it is not so. So the basic difference of saving and investment is बचत और निवेश, इन दोनों में क्या फर्क है, ये जानना बहुत जरूरी है.
सेविंग जो है, जो भी हम अपना खर्च करके कर रहे हैं, हमारी इनकम से जो बच रहा है उस खर्चे के बाद में, जरूरी खर्चे के बाद में, वो हमारी सेविंग है. वी मे हैव इट, हम उसको कहीं पे पुट नहीं करते हैं, तब भी वो हमारी सेविंग ही है, क्योंकि हमारा बच गया है पैसा. चाहे हम बैंक में लगाना चाहें तो हम बैंक में लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपरली किसी जगह पे प्रॉपर गोल के साथ में उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा विद गोल्स, सेविंग विद गोल्स, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है. जनरली रिस्क के टर्म्स में देखेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क, रिस्क इज द लॉस ऑफ कैपिटल, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल. जो आपकी पूंजी है, बेसिक मनी जो है आपका, अगर उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं तो रिस्क ज्यादा होगा, लॉस होने के चांसेस कम है तो लॉस रिस्क कम होगा. तो जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो लॉस रिस्क, इस रिस्क की कमी कम हो जाता है रिस्क, क्योंकि आपका जो कैपिटल है उसके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं. जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसके रिस्क ज्यादा होते हैं, आपके कैपिटल के लॉस होने के रिस्क ज्यादा होते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. लेकिन आपको इसमें दोनों चीजें, आप जहां पे रिस्क कम है, जनरली अगर आपको देखना होगा तो हम रिस्क कम ही लेना चाहेंगे. बेसिकली ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो गोल्स हमें लेने हैं या प्राप्त करने हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमें रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रिटर्न से. आप कम रिस्क लेंगे और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं. लेकिन अगर आप रिस्क ज्यादा लेंगे तो ही आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न ज्यादा मिलेगा. तो आपको जब ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या आपके गोल्स हैं और कहां पे आपको उनको लगाना चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके, टेकिंग द रिक्वायर्ड रिस्क, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से. So this is the basic difference. Everyone should understand saving and investment. Then basics of investment. अब ये investment के basics जरूरी है जानने के लिए. तो investment जैसे मैंने बताया, you're working so hard for your money. Now you require your money to work for you. तो पैसे को ऐसी जगहों पे सेविंग में लगा दिया without any goal. You don't know what is going to happen of that money. You're not aware about your goals, not aware about what money is doing for your reaching to those goals. When you're making the money work, that means you're putting your money towards some goals, knowing your goals and then putting that money to reach those goals, that becomes your investments, making the money work for you. तो हमें इन्वेस्टमेंट की एक और वजह से जरूरत पड़ती है, दैट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति. आज के दिन में अगर हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति इस समय करीब 6.5% से ज्यादा होगी, 6.5% के अराउंड होनी चाहिए. तो ये जो मुद्रास्फीति है, ये होती है जनरल राइज इन प्राइसेस. अगर आज के दिन में जो वैल्यू है 100 रुपीज की, पहले अगर हम 5 साल की बात करते हैं या वो पहले साल की, 1 साल पहले की बात करते हैं, तो यही 100 रुपीज की वैल्यू ज्यादा थी. और आगे आने वाले समय में 1 साल या 5 साल के बाद यही 100 रुपीज की वैल्यू गिर जाएगी, कम हो जाएगी. वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग वैल्यू. जो 100 रुपीज से हम परचेज कर सकते थे आज से 5 साल पहले, 1 साल पहले, और आगे आने वाले समय में जो हम परचेज कर सकेंगे, तो आज से जो हमारे 100 रुपीज की वैल्यू में परचेज कर सकते हैं, आने वाले समय में उससे कम ही परचेज कर सकेंगे. इसका मतलब है वैल्यू घट गई है. और ये वैल्यू क्यों घटती है? क्योंकि उस पर हमेशा इन्फ्लेशन एक्ट करता रहता है, जो दिखता नहीं है. तो इस इन्फ्लेशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है. अगर इन्फ्लेशन 6% है और हमें रिटर्न कहीं 6% का मिल रहा है, तो हमारे रिटर्न भी, नेट रिटर्न जो है 0 हो गया. अगर हमारे को रिटर्न 8% का मिल रहा है और हमारा इन्फ्लेशन 6% का है, तो हमारा नेट पॉजिटिव +2% का रिटर्न हो जाता है. और अगर इससे कम 6% से कम रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 6% है, तो हमारा नेट रिटर्न नेगेटिव हो जाता है. तो हमारा इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस है टू गेट यू पॉजिटिव नेट रेट ऑफ रिटर्न. So that is the basic reason for making investment. Then there is a concept called power of compounding. Power of compounding का मतलब है कि जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे, जैसे मैंने बोला, उतना ही आपको इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा, अफेक्ट आएगा. अगर आपने बहुत देर में शुरू किया, आपने 40 साल की उम्र में शुरू किया या उसके बाद शुरू किया, तो आपको वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं मिल सकता जो आपको 20 ईयर्स में शुरू करने पे मिलेगा. जितना आप लंबा समय देंगे पैसे को, उतना आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा, और आपको जो आपके गोल्स हैं आपके पूरे हो सकेंगे. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विच हैपेंस इन लॉन्ग टर्म और मीडियम लॉन्ग टर्म. So rule of 100, this is again a very important universal concept you should understand. जो डेट है, कितना हमें डेट में लगाना चाहिए और कितना इक्विटी में. और डेट जो है जनरली माना जाता है जो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देता है, वो डेट
एक लीस्ट रिस्की या कम रिस्की हमें माना जाता है। बैंक में भी अगर हम पैसा लगाते हैं, आपको इंटरेस्ट ही मिलता है, वो भी पार्ट ऑफ डेट है, तो आपको वहां पे रिस्क कम रहता है। तो उस तरीके के प्रोडक्ट्स में आपको कितना लगाना चाहिए एज के हिसाब से, और कितना आपको रिस्की प्रोडक्ट्स या इक्विटी प्रोडक्ट्स में लगाना चाहिए, जैसे सिक्योरिटीज हो गई, शेयर्स हो गए, तो वो आपको जानना चाहिए आपकी एज के हिसाब से। जो अगर आपकी एज डेट है और आप 100 से उसको माइनस कर देते हैं डेट को, एज आपकी 20 है, हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, 20 है, 100 से माइनस कर दिया तो 80 आ जाता है। तो आप 80 अपना रिस्की प्रोडक्ट्स या इक्विटी प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं, और जो 20 है आपका डेट प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप एज होते रहेंगे 30, 40, 50, 60, वैसे वैसे आपका इक्विटी पोर्शन घटता जाएगा और डेट पोर्शन बढ़ता जाएगा इसी फॉर्मूले से। तो आप जब रिटायरमेंट के एज में होंगे तो आपका ज्यादातर पोर्शन इक्विटी से शिफ्ट होकर के डेट में आ जाना चाहिए। दिस इज रूल ऑफ 100 which should be kept while you are making your investments. Then there is rule of 72. ये rule of 72 is required. Why it is required? This is again a universal rule to see that what is realistic rate of return. अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा पैसा कब डबल हो जाएगा, कितने समय में डबल हो जाएगा, तो ये रूल मुझे बता सकता है कितना भी पैसा मैं लगाऊं, और अगर मुझे पता चल जाता है कि रिटर्न कितना है, सपोज इंटरेस्ट मान लेते 8% का रिटर्न या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम 72 से इफ डिवाइडेड बाय 8, then you get 9. That means by getting a return, wherever you are getting 8% return, you can double whatever money you are investing in 9 years. Similarly, on the contrary, अगर आप ये देखते हैं कि आपको कोई पैसा 12 साल में डबल करना है, तो क्या रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए? तो आप 12 साल से 72 को डिवाइड कर देंगे तो 6% रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आप बैंक में आपको 6% या 5% मिल रहा है, तो आपको 12 साल लग जाएंगे अमाउंट जो भी आप रखेंगे उसको डबल होने के लिए। तो ये भी एक चीज है आपको जानने के लिए, क्या आपके लिए रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है। आज के दिन में जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन का रेट है करीब 6-6.5% और जीडीपी का रेट है 4% करीब। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं 6 और 4 को, तो 10%, 10.5% का जो है वो आपका जो है रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है। इसी के अराउंड आपको रिटर्न मिलना एक्सपेक्ट करना चाहिए, और इससे बहुत ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड व्हाइल यू आर गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। Then the 3 pillars of investment is safety, liquidity and return. Now safety and return again are, the more safe it is, less return. तो inversely proportional हो गए। अगर आप कम सेफ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप कम सेफ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम होनी चाहिए। इसी हिसाब से आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। लिक्विडिटी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उस तरह के प्रोडक्ट्स में आपको जनरली थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। जैसे कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, आप देखते ही हैं, जैसे बैंक में अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने लगाया है पैसा तो आपको वहां पे रिस्क कम हो जाता है, तो इसलिए बैंक भी आपको रिटर्न, रिस्क कम होने की वजह से रिटर्न कम ही देता है, जैसे कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स हो गए। लेकिन जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाता है, 1 साल 3 साल, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना पीरियड बढ़ जाता है, जहां लिक्विडिटी कम हो जाएगी वहां रिटर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि रिस्क भी पीरियड के साथ भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जितना भी आपका सेफ्टी, ये सब चीजें जो है हर एक की अलग अलग होती है। रिस्क एपेटाइट, एवरी पर्सन हैज गॉट हिज ओन। किसी का रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत कम होता है। तो जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसी के हिसाब से, या आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। और एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो भी आपकी खुद की आपकी सेफ्टी या रिस्क एपेटाइट है या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, आपको उसी के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। जो आपका रिस्क है उसको कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अपने सारे अपने एग्स एक ही बास्केट में रख लिए तो सारा रिस्क उसी बास्केट में आ जाता है। वो बास्केट अगर गिर जाती है तो सारे आपके एग्स या सारा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आपका अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हैं, एक एसेट में लगाते हैं, कई सारे एसेट्स में आप अपने पैसे को डिवाइड कर देते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो अगर एक एसेट में आपको लॉस हो रहा है या कम रिटर्न मिल रहा है, दूसरे एसेट में ज्यादा मिल रहा है, तो एक एवरेजिंग आउट हो जाती है। इसी तरीके से एक एसेट क्लास में भी अगर हम मान लेते हैं, एक एसेट क्लास में इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में अगर आपने निवेश किया है, म्यूचुअल फंड्स में भी विद इन दैट म्यूचुअल फंड्स एसेट क्लास आपको अलग अलग तरीके के उनके स्कीम्स होती हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ होती है। तो उसमें आप अगर लगाएंगे तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट क्लास में भी अलग अलग अगर लगा लिए, एक स्कीम में अगर डाउन हो गया है आपका एनएवी, दूसरी स्कीम में अगर अप हो गया है, तो आपका एक एवरेजिंग आउट विद इन दैट एसेट क्लास भी हो सकता है। तो एक एसेट क्लास में भी लगा सकते हैं, विद इन एसेट क्लास में भी आप
डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नो रिस्क नो रिटर्न, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए जरूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं ना। फाइनेंशियल प्लानिंग की बात अगर हम करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पहली चीज जानने की कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर मेरे को ये पता हो कि मेरे पास ये मेरी इनकम है या ये मेरे को कहीं से पैसा आते हैं, तो उस पैसे को अगर हम देख लेते हो, ये मेरा एसेट हो जाता है जो मुझे पैसा आ रहा है आफ्टर माई वट एवर कंजम्पशन विच आर हैविंग। तो ये मेरा एक सेविंग हो जाता है जो मेरे लिए मैं इससे पैसे को निवेश कर सकता हूँ। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई शुड सी। देन मेरी लाइबिलिटीज क्या है, जो मेरे को खर्चा रेगुलरली होना ही होना है, या कुछ जो मेरे अगर सपोज हम करते हैं, जो हमें पता रहता है कि अगर हम मंथली करते हैं इतना खर्चा मेरा होता ही है, या ये मेरी ईएमआई है, या मेरा ये लोन की ईएमआई है, जो भी है, तो वो आपका अगर अगर आप उसको निकाल देंगे तो नेट जो बचता है वही आपके पास है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन फाइनेंशियल गोल्स को लिख लें, ताकि ये रहे कि हमें पता है कि हमने हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। सबके फाइनेंशियल गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं और लाइफ स्टेजेस में अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे हमने बात की। तो फाइनेंशियल गोल्स जो है, पहली चीज है स्मार्ट होने चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर हमने इन सब मानकों में देख लिया है, हमारा जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा अगर ये फाइनेंशियल गोल है कि हमारी हायर एजुकेशन के लिए हमें जाना है। हायर एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए आज के दिन में उस जो भी एजुकेशन हम लेना चाहते हैं, आज के दिन में उसकी कॉस्ट क्या है और कितने समय के बाद मुझे वो लेनी है, ये चीज अगर हम देख लेते हैं तो टाइम बाउंड हो गया। हमें पता भी स्पेसिफिकली यही हमें एक एजुकेशन लेनी है, ये हमने लिख लिया, तो स्पेसिफिक भी हो गया, मेजरेबल भी हो गया, अचीवेबल भी है, क्योंकि हम कर सकते हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है हम कर सकते हैं, दैट इज अचीवेबल ऑल्सो। फिर उसके बाद अगर हम आज हमें इतना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, 5 साल के बाद कितनी जरूरत हो जाएगी, तो हमने उसको वो भी देख लिया कि कितना हमें इन्फ्लेशन वगैरह को देख करके हमने देख लिया कि हमें उस समय कितना उसको गोल को लेने पाने के लिए चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हमने देख ली, प्लान आउट कर ली, तो हम जो भी अपना आगे कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हम वो देखेंगे कहाँ पे कौन कौन से हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं और हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, हम बहुत रिस्क टेकिंग पर्सन है क्या हम रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से। अर्ली स्टेज में अगर हम रिस्क ले सकते हैं, क्या ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हम इक्विटी में ज्यादा लगा सकते हैं अगर हम अर्ली स्टेज में। मीडियम स्टेज में है तो हम उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, और लेटर स्टेज में है तो कम ही रिस्क ले सकते हैं। जो भी आप लाइफ स्टेज में है उसके हिसाब से आप देखिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए कैसे आप अपने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें आप किस तरीके से आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उसमें अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे क्या। एक जो गोल हमने एग्जाम्पल लिया, अगर आप उसको अचीव कर पाएंगे तो ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यानी कि आप इंप्लीमेंट कर दीजिए अपना फाइनेंशियल प्लान। इसी तरीके के एक गोल मैंने बात की, ऐसे 4 5 7 गोल हो सकते हैं जिनमें आप अपना लिख करके उसमें अपने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर अगर आपने पैसा लगा दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना लिया है लिख करके, तो उसको ये लिखने के बाद में हम ये नहीं करना है कि हम वी विल रीच टू दैट, वी हैव टू अगेन रिव्यू एंड रिवाइज, चाहे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे भी करना है हम उसको रिव्यू करते रहेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या हमें वो रिटर्न मिल रहे हैं जिससे कि हम अपने उस गोल को या उन गोल्स को पहुंच पा रहे हैं। अगर हम उसमें नहीं पहुंच रहे हैं, कम हो रहा है, तो हम रिव्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उसी हिसाब से, तो हम अपने गोल्स को पहुंचना है। तो इसको हम अपना पूरा साइकिल को लगातार चलाते रहेंगे टिल वी रीच आवर गोल्स। सो दिस इज द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस दैट वी ऑल शुड ऑलवेज हैव। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन जस्ट सी today's pandemic, that is covid के समय में I think this has happened very suddenly and we were not totally, I think we were not planned, we were not knowing about this kind of mishap that has happened. तो जनरली जो हो रहा है कि कई लोगों की लॉस ऑफ जॉब हो गया है, कई लोगों की लॉस ऑफ इनकम हो गई है या रिडक्शन ऑफ इनकम हो गई है। इस चीज के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो हमें इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हमारा एक गोल हो सकता है कि वी आर हैविंग सम कंटिंजेंसी प्लान। कंटिंजेंसी इज दैट वी आर हैविंग मेंटेनिंग सम 6 8 10 मंथ्स का हम अपना फाइनेंशियल जो भी हमारी खर्चे होते हैं, हमें पता है एक एवरेज खर्चा जो होता है, वी आर हैविंग दैट बिफोर हैंड, वी आर हैविंग दैट एज अ लिक्विड फंड। कहीं पे भी हमने लिक्विड फंड ले लिया है या हमने कहीं बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, टू हैव दिस ओनली गोल कि हमारा 6-8 महीने का फाइनेंशियल, अगर हमारा ऐसी कोई कंडीशन आती है, वी कैन मैनेज दैट। सो दैट इज वन थिंग, वन ऑफ द गोल। आज के सिनेरियो में एक लर्निंग है
दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आज हमारे लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अभी से कुछ समय पहले तक नहीं था। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गया, तो इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल टू हैव योर टर्म इंश्योरेंसेस प्रॉपरली, नॉट हैविंग एनी अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बट टर्म इंश्योरेंस। आपको अपना एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, ताकि आप उसको किसी तरीके की अगर आपको जरूरत पड़ जाए आगे आने वाले समय में, तो आपको जो डिपेंडेंट्स है आपकी, उनके लिए आपको दिक्कत नहीं हो उनको। ये भी है, और साथ में साथ अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आपको प्रॉपर ले लेना चाहिए, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस भी ले लेनी चाहिए, सो दैट हेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, you should also take care this also on priority. So that is kind of learning in today's scenario. Now selecting your products, as I mentioned, कि आप जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता चल गया है, फिर आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि 3 चीजें हैं, सेफ्टी है, रिटर्न है और लिक्विडिटी है। इन तीनों क्राइटेरियाज में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप लेने वाले हैं। जैसे आपको अगर जरूरत है, ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत है, उसके लिए आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, सेविंग बैंक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, ये अलग म्यूचुअल फंड्स है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं। और उसके अलावा मीडियम टर्म में भी ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बॉन्ड्स में लगाते हैं या डेट और इक्विटी में लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ऐसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में आप निवेश कर सकते हैं, शेयर्स में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। ये आपका अगर लिक्विडिटी के टर्म्स में हम देखते हैं। अब रिस्क के टर्म्स में देखते हैं तो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस ट्राइंगल। नीचे आप देखेंगे तो ये जहां पे सबसे कम रिस्क है, बैंक्स प्रोडक्ट्स हो गए या गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, पीपीएफ वगैरह हो गया, डेट स्कीम्स हो गई, जहां पे आपको कम से कम रिस्क रहता है। फिर जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं इस पिरामिड में, द रिस्क बिकम्स मोर देन इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि डेट और इक्विटी में ऐसे लगाते हैं जहां पे रिस्क मीडियम है। ऊपर जाएंगे तो आप कमोडिटी डेरिवेटिव में चले जाते हैं या इक्विटी डेरिवेटिव में चले जाते हैं जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो लॉस ऑफ कैपिटल के रिस्क बहुत ज्यादा है। नाउ इफ यू वांट टू कमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मैंने बताया था बैंक आपका जो होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट की जरूरत है। उसके लिए आपको बेसिकली एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट के लिए आपका केवाईसी होना चाहिए, यानी कि आपका आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, जो आपके पास होगा। आधार कार्ड है या और भी हमारे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होते हैं, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया, इन सब चीजों के साथ में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि ओपन हो जाता है। फिर आपका पैन तो आज के सबके लिए जरूरी है। पैन नंबर आपका है, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं नहीं करते हैं तब भी जरूरी है। अगर आप इस तरीके के अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, आपका पैन नंबर अगर है, इन दोनों का यूज करके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कि बेचना खरीदना चाहते हैं, बाय सेल करना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रोकिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। और डीमेट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा, जो कि डिपॉजिटरीज के साथ में एजेंट होते हैं। और अगर ब्रोकिंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, जो कि एक्सचेंजेस के साथ में मेंबर होते हैं। तो देन यू कैन कम एंड ट्रेड इन द सिक्योरिटीज मार्केट। अब जब डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने आपको बताया है इसमें कुछ आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर जैसे अब डीमेट अकाउंट में भी आपको एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आपका केवाईसी होता है, नो योर क्लाइंट फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। उसके अलावा एक एग्रीमेंट होता है, क्लाइंट ट्रेडिंग मेंबर एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, और जो आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने ही पड़ते हैं, साइन करके देने पड़ते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने जरूरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं। उसमें से एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपको नहीं देना है तो जरूरी नहीं है आप दीजिए। उसी के साथ में अगर आप रनिंग अकाउंट आप कर रहे हैं, रनिंग अकाउंट आपको नहीं रखना है आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सेटलमेंट चाहिए, तो आपको सेटलमेंट मतलब उसको सेबी के मैंडेट के हिसाब से उसको सेटल करना ही पड़ेगा, यानी कि जो भी आपके फंड्स और सिक्योरिटीज हैं उसका स्टेटमेंट आपको उसी के हिसाब से आपको भेजना ही पड़ेगा। तो उसके अलावा अगर आपको नहीं चाहिए वो स्टेटमेंट, आप उसको एक क्वार्टरली या मंथली आप राइट दे सकते हैं कि वो सेटलमेंट करेगा मंथली या क्वार्टरली। वो आपको अगर देना है तो आप दे सकते हैं राइट उसको। उसके अलावा जो चार्जेस आपसे वो लेगा वो भी वही चार्जेस होंगे जो आप साइन करके देंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप जब भरते हैं तब आप उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, आप उसके साथ में एक क्लाइंट के रूप में काम कर सकते हैं। और इन सबको काम भरते समय भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि आप क्या भर रहे हैं, और उसको भरने के बाद में ही साइन करना चाहिए। कोई भी चीज ब्लैंक मत छोड़िए,
और उसकी जो आप भर के देते हैं किसी भी इंटरमीडियरी को, चाहे ब्रोकर है या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और आप जो दे रहे हैं उसको आप उसकी कॉपी जरूर ले लीजिए जब आप उसको देते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि अगर बाय एनी चांस आपको कोई कंप्लेंट हो जाती है, कोई ग्रीवियंस हो जाती है, तो आप कैसे उसके पास, किसके पास जाना चाहिए आपको ग्रीवियंस के लिए, वो मेंबर के पास या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, किसके पास आपको जाना चाहिए। अगर वहां पे पूरी नहीं होती तो उनका एस्केलेशन मैकेनिज्म क्या है, आप किसके पास और जा सकते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पहले से ही पूछ लेना चाहिए अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करना जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप लोग जब मार्केट में जा रहे हैं या नॉर्मल आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी अगर सिक्योरिटीज मार्केट में ब्रोकर के आप एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, कभी भी ब्रोकर से कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना है, केवल चेक के रूप में ही ब्रोकर को आपको मनी देना है, पैसा देना है। आप लोगों को अगर इंटरनेट आप उसको राइट्स दे रहे हैं, इंटरनेट ट्रेडिंग करने के लिए आप जा रहे हैं, तो ये भी एक नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, उसको साइन करके ही आप इस तरीके की फैसिलिटी लेते हैं। तो यहाँ पे अपना जो इंटरनेट आपके डिटेल्स है, इंटरनेट रिलेटेड डिटेल्स है, पासवर्ड है और अकाउंट डिटेल्स है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ही सारे आपके ट्रेडिंग रिलेटेड आपके अलर्ट्स आते हैं। तो मोबाइल नंबर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, या मोबाइल नंबर भी आपको अपने जो भी आप ट्रेड करते हैं उसी समय आपको चेक करते रहना चाहिए कि आपका ट्रेड हुआ। जैसे कि जस्ट लाइक बैंक में अगर आपने कोई ट्रेड किया, इंस्टेंटली आपको एक मैसेज आ जाता है, ईमेल आ जाता है, सेम यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आपकी ट्रेडिंग का क्या डिस्क्रिप्शन है, आपको वो अलर्ट्स देखने चाहिए। और उसके बाद में भी कोई चीज अगर नहीं होती तो आपको उसी समय उसके पास, ब्रोकर के पास या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपनी चीज को ले जाना चाहिए, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास ऑर्गेनाइज रखने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास हैंडी होने चाहिए। Now, coming to mutual funds, which I was talking, asset class में mutual funds are one of very robustly regulated asset class, जो सेबी द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसमें करीब हमारे पास 47 म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड हैं इस समय, जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। अब म्यूचुअल फंड का जो मेन पर्पस है, इफ अ पर्सन इज नॉट दैट मच अवेयर, ही इज नॉट हैविंग दैट मच टाइम, इज हार्ड प्रेस्ड ऑन टाइम, या उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, ना नॉलेज लेने का समय है, तो ही कैन वेरी वेल टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग थ्रू द म्यूचुअल फंड्स व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सो म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे जो आपका पैसा है, इट विल कम इन द हैंड्स ऑफ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल पर्संस हु आर डूइंग दिस थिंग डे इन एंड डे आउट। तो ये जो है वो अलग अलग स्कीम्स में विद द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स इसलिए क्योंकि उनका हो सकता है ऑब्जेक्टिव ज्यादा रिस्क टेकिंग प्रोडक्ट्स में लगाना है, इक्विटी प्रोडक्ट्स में केवल लगाना है, या डेट प्रोडक्ट्स में लगाना है, या हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में, मिक्स प्रोडक्ट में लगाना है, क्योंकि अलग अलग रिस्क एपेटाइट के लोग आते हैं। या लिक्विडिटी का आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी का कम रिस्क का ऑब्जेक्टिव है, बहुत लिक्विड फंड्स में भी चाहिए, किसी को ज्यादा रिस्क लिक्विड चाहिए तो वो लिक्विड फंड्स हो गए। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें अलग अलग कई सारी स्कीम्स चलती हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप अलग अलग स्कीम्स को देख करके, स्टडी करके आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी चीज आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए सेबी के रिक्वायर्ड मैंडेट्स हैं। इनको जो म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट्स हैं, एमपी की वेबसाइट्स हैं, सेबी की वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे सारी जानकारी, केआईएम जो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, या आपका एसआईडीएस स्कीम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, वहां पे अगर आप उसको पढ़ लेते हैं जो डॉक्यूमेंट है, तो आपको काफी नॉलेज हो जाती है। जो भी आप म्यूचुअल फंड की सारी स्कीम्स के बारे में आप जान के खुद अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो पैसा है यहाँ पूल होकर के प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज होता है, और जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स को वापस मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट होकर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत कम पैसे लगा करके भी, जो कि हमारा एसआईपी मोड है, यानी कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप लोगों को एक डिसिप्लिन भी आ जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। हर मंथ में आप एक एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो छोटा छोटा अमाउंट का, यानी 100 रुपीज तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रेगुलरली। लॉन्ग टर्म में विद द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न। ऑल्सो यू कैन लर्न व्हाइल यू आर डूइंग द इन्वेस्टमेंट योरसेल्फ, you will always learn how these mutual funds are working. Only by seeing the books you will not learn. By only investing in these kind of products you can learn, and you can take a very well informed decision
while investing in mutual funds. नाउ कमिंग टू, अभी तक हम ये बात कर रहे थे क्या हमें करना चाहिए, अब हम ये भी जान लेते हैं क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम पॉन्जी स्कीम्स, जो हमने अगर नाम सुना हो, पॉन्जी जो वर्ड है इज सम काइंड ऑफ कैची वर्ड। पॉन्जी का क्या, कहां से आया ये वर्ड? दिस इज कम फ्रॉम अ नेम कार्लो पॉन्जी। तो दिस वाज सम काइंड ऑफ इटालियन फ्रॉडस्टर जिसने काफी सारा प्रॉमिस किया, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाया, कहा कि 3 महीने में उनका पैसा डबल कर देंगे। तो ये इटालियन उनका पैसा डबल करने का उनको प्रलोभन दे करके उसने काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा ले लिया। एंड देन लेटर वो जो पैसा लेता रहा, वो जो पहला जो इनसे पैसा ले रहा था, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे उनको पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा उनसे नए निवेशक से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा था। इस तरीके का साइकिल चलाता चला गया, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, ये स्कीम बहुत बड़ी हो गई, अपने ही वेट से ये बस्ट हो गया। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका पहली बार इस तरीके का फ्रॉड हुआ उनके साथ में, तो उसके नाम से इसको कहते हैं पॉन्जी स्कीम्स। सेबी इस तरीके की स्कीम्स पे भी काफी सारे एक्शंस लेती है, और सेबी के पास जो भी कंप्लेंट आती है इस तरीके की, बिकॉज जो लोग होते हैं वो ग्रीड की वजह से, यानी कि लालच की वजह से, और ये ना जानने की वजह से कि क्या चीज रियलिस्टिक है, क्या चीज अनरियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न है, क्या चीज रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास जाना चाहिए, कौन अनरजिस्टर्ड है, कौन अनरजिस्टर्ड नहीं है, ये चीजें उनके पास जानकारी नहीं होने की वजह से इस तरीके के पॉन्जी स्कीम्स वगैरह में फंस जाते हैं और उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा सेबी एक और चीजों को देखती है जो कि डीम्ड पब्लिक इशू है। जैसे मैंने अभी पहले स्लाइड्स में बताया था कि अलग अलग तरीके की कंपनी जब पहली बार आती है मार्केट के अंदर और पैसा लेती है पब्लिक से, तो दो तरीके से इक्विटी के इश्यूज लाती है, डेट के इश्यूज लाती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो अगर ये पब्लिक इश्यू जो ला रही है, यानी कि पब्लिक के पास जाकर के पैसा ले रही है, तो उसको काफी सारे जो रूल्स रेगुलेशंस को पालन करना पड़ता है, और अगर वो पालन नहीं करती है तो सेबी उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनीज एक्ट जैसे कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के भी सेबी के दायरे में आते हैं। तो आज जो कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर उसमें ये मेंशन्ड है कि अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि कुछ लोगों को अगर दे दिया, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बहुत रिलैक्स्ड है। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 200 से ज्यादा हो जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो पूरे पब्लिक इशू को उसको पब्लिक इशू माना जाएगा, डीम माना जाएगा, और उसको सारे जितने रूल्स रेगुलेशन है पब्लिक इशू के, कंपनी को जो भी इशू कर रही है उसको जाके लिस्ट होना पड़ेगा, वो सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब कंपनी नहीं करती है, अगर ऐसा करती है 200 से ज्यादा निवेशकों को दे करके पैसा लेती है, तो उसके ऊपर भी सेबी एक्शन लेती है। इसके अलावा डब्बा ट्रेडिंग जो है, जो मैंने बात की, सारी ट्रेडिंग जो होती है सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सचेंज के ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में होती है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां एक्सचेंज होता है जो ये देखता है कि अगर कोई निवेशक का कोई कंप्लेंट है, या उसके बीच में अगर उसको कोई डिफॉल्ट हो जाता है, ब्रोकर डिफॉल्ट हो जाता है, या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो सेबी इज देयर रेगुलेटिंग द मार्केट, सीइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड इन द मार्केट। अगर इस तरीके का कोई ऐसी जगह पर ट्रेडिंग होती है जहां पे स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, और जहां पे कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा, इस तरीके का अगर ट्रेडिंग होने लगती है और वो स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के बाहर ट्रेडिंग होती है, तो वो इलीगल ट्रेडिंग हो जाती है, जो कि सेक्शन 13 ऑफ SCRA में दी गई है। तो उसके लिए भी सेबी एक्शन लेती है, और जनरली इसमें जो है IPC की धाराओं पे जो भी कार्रवाई होनी होती है, पुलिस भी इसमें एक्शन लेती है, क्योंकि ये इलीगल ट्रेडिंग हो जाती है। और इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनका कोई नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, केवल उनके पास ये रास्ता होता है कि वो पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस के पास जाती है मैटर, और सेबी इसमें कुछ नहीं कर सकती बिकॉज ये सिक्योरिटीज की बाहर की ट्रेडिंग होती है। लेकिन सेबी के पास अगर एक कंप्लेंट आ जाती है, सेबी इस पे देखती है कि वो डब्बा ट्रेडिंग पे फास्टेस्ट एक्शन हो जाए, ताकि उसकी जो प्रॉपर रेगुलेटरी एजेंसी है, यानी कि पुलिस है, उसके पास इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसको एक्शन लेने के लिए जल्दी से जल्दी बताया जा सके, रिफर किया जा सके। इसके अलावा जो अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन सब तरीके की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। प्राइस चीट हो गया, मनी सर्कुलेशन, मनी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स है, पॉन्जी स्कीम्स है। तो अगर किसी तरह की कंप्लेंट इनमें हमें सेबी को मिलती है, तो सेबी उसको देख करके एनालाइज करके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देती है। इसके अलावा अगर निधि है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कुछ कंप्लेंट आ जाएंगी, तो वो MCA को चली जाती है। इसके अलावा अगर कोई डिपॉजिट रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, NBFC रिलेटेड है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी रिलेटेड, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको देखते हैं नियामक के रूप में। इसके अलावा अगर सेबी की बात करेंगे, तो सेबी म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, CIS रिलेटेड कंप्लेंट है,
ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स, इस तरीके की अगर कोई कंप्लेंट डीम पब्लिक इशू या कोई अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी कर रहा है जो कि इन सब दायरों में आती है, तो उसके लिए भी सेबी कंप्लेंट देखता है और सेबी उस पर उपयुक्त कार्रवाई करता है अपने अपने पावर्स के हिसाब से। बाकी ये सारे नियामक हैं। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो इन किसी भी रेगुलेटरी एजेंसीज के अंडर में नहीं आती है, तो उसको उसको देखना चाहिए। अगर एक निवेशक देख रहा है या कोई भी पहली बार अगर निवेश कर रहा है किसी भी स्कीम या कंपनी में, उसको देखना चाहिए कि इन सब किसी भी रेगुलेटर्स के द्वारा वो रेगुलेटेड होती है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको वहीं पे देख लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, ज्यादा अवेयरनेस लानी चाहिए और उसमें निवेश जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। सेबी का जो इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो कि अगेन अ पार्ट ऑफ और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैंडेट, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सेबी का जो मैकेनिज्म है वो स्कोर्स मैकेनिज्म है, SCORES, दैट इज सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इट वाज लॉन्च्ड इन 8 जून 2011। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हमारा वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां पे आप इस लिंक पे जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। आपका पूरा जो वेब पेज आएगा उस पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा या ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और आप उसका यूज करते हुए अपनी कंप्लेंट को वहां पे दर्ज कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट को टिल इट इज रिजॉल्व एक एक स्टेप पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्या आपकी रिड्रेसल हो रही है। इसके अलावा भी आप नहीं कर पाते हैं, उस पर आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आप नहीं कॉम्पिटेंट है, आप कंप्यूटर सेवी नहीं है, तो आप फिजिकली चिट्ठी भी भेज सकते हैं। वो फिजिकल चिट्ठी को भी सेबी उसको अपलोड कर देता है। जितने भी आपके प्रॉपर आके आपने डिटेल्स दे दी है अपने कंप्लेंट की और अपने बारे में, तो सेबी उसको अपलोड करके भी कंप्लेंट को रजिस्टर कर देता है। कोई भी कंप्लेंट इस कोर्स के अलावा सेबी नहीं देखता है सिक्योरिटीज मार्केट की। अगर इसमें भी अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो सेबी के बाहर एक आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है, जो कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, जस्ट लाइक अ कोर्ट, वहां पे सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट्स का। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, ट्रेडिंग मेंबर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, उन सब के बीच में एक जज का पैनल या एक पैनल ऑफ जजेस बैठ करके उसको देखते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं उसका, तो उस तरह से उसका रेजोल्यूशन होता है और दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। इसके अलावा अगर कंप्लेंट आपको किसी तरह से आ भी जाती है तो सबसे पहला आपका यही स्टेप है कि आपको ये जानना चाहिए कहाँ जाना चाहिए, कंपनी के पास किसके पास जाना चाहिए, कंपनी का क्या मैकेनिज्म है, किसके पास फर्स्ट टाइम या एस्केलेट करके किसके पास जाना चाहिए, इंटरमीडियरी या ब्रोकर या डीपी के पास, या म्यूचुअल फंड की कंप्लेंट है तो किसके पास, वहां पे कौन है, वहां पे जो अथॉरिटी है जिसके पास आपको कंप्लेंट लेके जाना चाहिए। नहीं होती है पूरी तो आप एक्सचेंजेस या डिपॉजिटरीज के पास जा सकते हैं, और फिर भी नहीं होती तो आप स्कोर्स पे आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली भी आप हमेशा स्कोर्स पे कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं। सेबी का जो हेल्प डेस्क है, इंफॉर्मेशन डेस्क है, वो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेबी का वेबसाइट है, या सेबी की जितने भी कार्रवाई या जो भी सेबी काम करता है वो सब आप इस पे जाके देख सकते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप इस पे देख सकते हैं। सेबी का जो इन्वेस्टर वेबसाइट मैंने बताया था, सेबी की जो इन्वेस्टर एक्टिविटी अवेयरनेस एक्टिविटी जो है वो आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेबी का टोल फ्री नंबर्स है, अगर आपको कोई क्वेरी है किसी भी बारे में, आप इन टोल फ्री नंबर्स पे आप एज ए निवेशक भी बात कर सकते हैं, एज जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी आप जाकर के कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। सेबी के जो लोकल ऑफिस हैं, जो कि लखनऊ ऑफिस में या ये लोकल ऑफिस है, इसके अलावा 20 लोकल ऑफिस है अक्रॉस इंडिया, आप वहां पे भी ईमेल के द्वारा, आप फिजिकली भी जा करके और फोन से भी आप पूछ सकते हैं, आपकी जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज आप वहां पे दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये सेबी का लखनऊ लोकल ऑफिस का ईमेल आईडी है जो नीचे दिख रहा है, और ये हमारा गोमती नगर में ऑफिस का एड्रेस दिख रहा है। ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें हम देख रहे हैं कि रातों रात लखपति बन जाओ। अगर ये हम देखते हैं स्लाइड में, ये जो पहला शायद इतना बड़ा बड़ा आपने स्लोगन देखा है, ये ज्यादातर हमारे आरपीज जो होते हैं वो जाते हैं जब अपने जो प्रोग्राम्स करते हैं, हमारे जो MIIs हैं वो भी जाते हैं, दिखाते हैं। तो ये सब जो चीज है, ये इस तरीके का जो आप पहला शब्द अगर इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ग्रीड की बात कर रहा है। रातों रात लखपति बन जाओ उसके लिए तो ठीक है, जो जानता नहीं रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है, या ही इज लिटिल ग्रीडी एंड डज नॉट नो व्हाट इज एक्चुअली रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ऐसे आदमी को ये सब कह करके बेवकूफ बना करके कंपनियां काफी सारा पैसा लेकर के, उनका हार्ड एंड मनी लेकर के चली जाती हैं।
लेकिन हम जिसको पता है कि रियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्स क्या है, उसके लिए पता है कि उसका ये चीज कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। कम समय में ज्यादा मतलब धोखा, सेबी इसको हमेशा बोलता है और सेबी इसको हमेशा प्रोपोगेट करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ध्येय इन्वेस्टमेंट का है कि हम अपना गोल्स को कैसे प्राप्त कर लेते हैं और उसको जल्दी से जल्दी कितना जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारा बेसिक पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का? टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। क्योंकि पैसा हमें अपने आप में कुछ भी नहीं दे सकता है, पैसा अपने आप में कोई खुशी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर पैसे से हमारे गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो हमें वो अचीवमेंट हो जाता है और हमारे एक पैसे का उपयोग हो जाता है, प्रॉपर उपयोग हो जाता है, जिससे कि हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को प्राप्त कर लेते हैं या हम खुश हो सकते हैं, हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। Thank you. Thank you very much, Naveen ji. I think it was a very comprehensive session and really very insightful. क्योंकि आज जो कोविड के समय में सबसे बड़ी बात जो समझ में आई है, जो हम लोग इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस के लिए, कॉलेजेस के लिए और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, कि हम लोग ज्यादातर अपना फंड्स और निवेश ज्यादातर हम लोग बैंकिंग में करते थे या बीमा में करते थे, लेकिन कैपिटल मार्केट्स हम लोग को नहीं ध्यान देते थे। लेकिन इधर पिछले 6 महीनों में बहुत से जो मिलेनियल्स हैं, जो 22 से 36 साल के युवा हैं, या फिर जो जेन जी के लोग हैं, विच इज फ्रॉम 18 to 25 years ऑफ एज ऑफ पीपल, तो इन लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। और आज बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानना और उसके बारे में समझना। उससे फायदा तो बहुत है, नो डाउट। आई थिंक कल ही मैं एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था जिसमें कि मिसेस बेक्टर फूड का जो आईपीओ आया, उसमें मतलब 3 दिन में उसका जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, और जिस तरह से उसमें एक्सपेक्टेड उसकी लिस्टिंग है, और बर्गर किंग का जो आईपीओ हुआ उसकी लिस्टिंग 130% पे हुई। तो आज जिस तरह के मार्केट्स में मूवमेंट है, वोलेटिलिटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों की जानकारी आप सभी को हो, सो दैट यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, you can become wealthy, but with all the precautions, all good knowledge, because everything is all about risk management. So नवीन जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत ही सरल भाषा में और पूरे विस्तार से आप सभी को बताया। So we would want anybody has any question, so we can take that, or you can always reach out to us at AWOKE India or SEBI for any of the queries. So in case there are no questions, because we started a little late and the program got a little delayed also, so I would formally want to close this. Thanks again to all the participants, to members of Lucknow management, to the participants from IMRT. Thanks a lot for your joining the program today. And lastly, to Sri Naveen Saxena ji, AGM SEBI, Shri Atul Agrawal ji, who could not be part of this session, who was busy, so for helping us conduct this program, DGM SEBI. So thanks a lot to all of you. Thank you very much, and we formally close this session today. आप सभी को नमस्कार. Thank you very much. Thank you. चलो.